and required component. Topic is clear, Azure VPN service. ठीक है, Azure VPN service. Do you have idea about the types of VPN? कितने तरीके के VPNs होते हैं? Not sure. Okay, Private and VPN. Azure VPN setup. ठीक है. The best part with us that we have a much idea, I think, about networking of Azure. I'm talking about we good with the concept of Azure VNet. You clear about the Azure VNet? Yes, yes. In previous classes. In Azure VNet, we know that we can set up our subnet. So here we are going to establish one subnet for VM, virtual machine, Mhm. right? And another subnet for gateway, right? Because the gateway can allow us to set up our virtual private network. Okay. ये सारी सर्विसेज हमारी एज्योर पोर्टल पे स्टैब्लिश करने वाले हैं और अनफॉर्चुनेटली जो इसमें टाइम लगता है ना, लेट मी गिव यू एन आइडिया अबाउट द टाइम दैट रिक्वायर्ड गेटवे सेटअप का time required to set up VPN. First, gateway will take up to 30 to 45 minutes, not from our side, Mhm. from the portal side. Okay. And AD users authentication take up to 15 to 25 मिनट. ठीक है, हम अपने Mm. पूरे सेटअप को 5 मिनट में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. बट जो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से टाइम लगता है ना टनल वगैरह सेटअप करने के लिए, दैट रिक्वायर्ड अप टू 15 to 25 मिनट रिलेटेड टू द ऑथेंटिकेशन ऑफ आवर एडी यूजर्स, और 30 से 45 मिनट का टाइम लगेगा जब हम अपने गेटवे को स्टैब्लिश करेंगे. ठीक है, सो ये टाइम माइक्रोसॉफ्ट एज्योर कंज्यूम करेगा. हम दैट in between these times we are going to discuss about anything. Okay. So let me proceed that we can easily create these point: Azure VNet, VM subnet, and subnet for the gateway. So let's complete this practical because we don't have a time. We'll try to complete the VPN practical today. Open VNet. This is the VNet that we created earlier. I want to create a new VPN. I need to set up a new virtual network in same location. This is our container and the network name is VPN VNet. Okay. This is the name of our VNet that I decided to configure. Next, I don't want to go with the manual method, the existing infrastructure. Let me choose 192.168.1.0 and proceed with the /25. How many IP addresses will get in 25? VM subnet number 1, and I'm just going to put 64 IP address for VM subnet. और दूसरा सबनेट हम बनाने वाले हैं फॉर गेटवे सबनेट. यहां से हम फाइंड करेंगे विच इज वर्चुअल नेटवर्क गेटवे. 25 इसमें ऑलरेडी है. लेट मी प्रोसीड विद 26. 128 IP addresses as per the CIDR value that you provided. हमने CIDR value कितनी प्रोवाइड की है? /25 की, right? Mhm. And in case of /25 we are able to connect up to 128 devices जिनको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया. VM subnet 64 IP addresses and gateway subnet will also take the same number of IP addresses 64. Next, next and create. ठीक है, this is step 1. Definitely I want to set up my VPN using my personal virtual network, the VNet. I want to establish everything using our personal virtual network. Proceed. So as per the name suggest, यहाँ पे जो सबनेट हमने तैयार किया ना, the subnet will responsible to take the VMs. यहाँ पे क्या होगा, जो Azure की virtual machines create करेंगे, जो Azure पे स्टोरेज तैयार करेंगे, जो Azure पे हम DB तैयार करेंगे या कोई एप्लीकेशन सर्विसेज होस्ट करेंगे, whatever services that you I wanted to a company want to establish over a portal, they always put it into the VM subnet. जो हमारा VM subnet है वहां पे स्टोर किया जाएगा. Gateway subnet is basically applicable for the specific task. Specific task in the sense यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, Azure Virtual Gateway. And this gateway
will allow us to set up two more services. The gateway will give us option to configure two services. One is related to VPN and another is express route. All right. So these Yes. two services that we can easily add in our virtual gateway, the gateway that we just added in our विनेट, जो विनेट में अभी हमने गेटवे ऐड किया, उस गेटवे के अंदर ये दोनों फीचर्स मिलेंगे हमें एज पर द रिक्वायरमेंट, बिकॉज वी आर गोइंग टू गाइड आवर क्लाइंट एंड डिस्क्राइब अबाउट द गैप बिटवीन वीपीएन एंड एक्सप्रेस रूट थेरेटिकली. क्लाइंट विल डिसाइड कि उसको एक्सप्रेस रूट पे जाना है या फिर उसको वीपीएन के थ्रू स्टैब्लिश करना है, अपना नेटवर्क कम्युनिकेट कराना है दो डिफरेंट पार्ट के बीच में. सो इट्स टोटली डिपेंड अपॉन द क्लाइंट्स, वो डिसाइड करेगा. ऑल Okay. गुड? Yes, ma'am. Okay, next let's try to understand about we are still on the page of AISU portal. ठीक है, अभी हम आ जाते हैं पोर्टल के ऊपर. Our VNet is ready to use with two different subnet. हमारा जो VNet है दो subnet के साथ ready है. And now it's time to set up, right? Now it's time to establish one gateway for our VNet, virtual gateway. We are going to set up virtual gateway. Here we can see application gateway, gateways, Azure VPN gateway, which is separate. Back to the networking and find it directly from the network page. That will part of hybrid environment. So under the hybrid, we are able to find virtual network gateway, select it and create must be put it into the same VNet that we just created. Multiple options are available, express route and gateway that give us option to configure VPN gateway as well. So we just need to select VPN gateway for now, click and create new hybrid gateway. VPN-gateway. I want to proceed with this name. East US is our location. दोनों ऑप्शन यहाँ पे मिल रहे हैं हमें. We are able to see VPN and express route. I'll tell you about the gap between both. SKU is basically stock keeping unit that decide the capacity, right? Like how many devices you are able to connect, how many machines you are able to connect in your virtual network gateway. So I want to go with the gateway 2AZ, which is 2 is a version of 2 VPN gateway 2, and AZ means like as a zone which is applicable for every network environment. Select your gateway that we create, VPN that VNet that we created, VPN gateway, VPN VNet, और यहाँ पे अपने आप gateway subnet आ गया है जो हमने mention किया था. Provide your public IP address, VPN IP, and secondary IP is also important, VPN IP2. No need to do anything. This is the logical port number 65,515. This is the kind of logical port number that will be applicable for our VPN setup. Next पे click करेंगे and create पे click करेंगे. It will take, as we discussed, 30 minutes to 45 minutes. 30 से 45 मिनट का टाइम लगेगा इसको कंप्लीट होने में. And meanwhile, we are going to talk about the concept related to the VPN. And once our gateway is ready to use, we will add one virtual machine in our subnet of VM. And after that, we'll set up our hybrid environment. Deployment in progress. हम समझते हैं theoretical part कि ये कैसे real environment में काम करेगा. All right? Yes. First step, what we did, we created VNet. Second step, we set up subnet. Third step, we created gateway. And fourth step, right? Fourth step, we are going to configure VPN, which is pending. अभी हमने केवल गेटवे ऐड किया है, VPN को ऐड नहीं किया है. तो फोर्थ स्टेप में हम गेटवे को VPN को ऐड करेंगे. Okay. All the machines, all the devices and resources are connected with VM subnet. और हमने जो VNet की IP रेंज दे रखी है, which is started from 192.168.1.0/25, means total number of IP addresses 128. ये C क्लास की IP एड्रेस है और इनमें से हमने
0 to 63 IP addresses we assigned for our VM subnet. Means whatever device that you are going to connect in VM subnet will get an IP address between 0 to 63. और जो आपका गेटवे है उसकी जो IP एड्रेस होगी वो 64 से लेकर के 128 के बीच में IP एड्रेसेस मिलेगी. Clear? Okay. Yes, sir. The important part is you should clear about everything related to the VPN. पहले हम बात करेंगे प्रोटोकॉल्स के बारे में, ठीक है? Okay. And then we'll talk about the types of VPN के बारे में, Okay. right? And then we'll talk about method to set up Azure VPN. मेथड टू सेटअप एजूर VPN इन द सेंस कि एक क्लाइंट है जो वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, उसको किस तरीके से हम अपने VM का एक्सेस प्रोवाइड करेंगे यूजिंग प्राइवेट IP एड्रेस. VPN का मतलब ये है कि हम कैसे प्राइवेट IP एड्रेस के थ्रू उसको असाइन करेंगे. क्लियर? Okay. स्टार्ट विद द VPN प्रोटोकॉल्स. पहला जो टॉपिक है वो है VPN प्रोटोकॉल्स. दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रोटोकॉल्स. You should clear about your work concept related to the all VPNs. ठीक है, next let's talk about first PPP L2TP. Number third, Open VPN. I'm talking about the protocols. Number 5, IP security. Then number 5, Open VPN with IP security. Number 6, IKE V2, IKE version 2 plus OpenVPN. ठीक है? VPN protocols help us to you can say that VPN protocol help us to establish टनल बिटवीन टू डिफरेंट नेटवर्क. दो टनल के बीच में नेटवर्क को Okay. स्टैब्लिश करने के लिए VPN प्रोटोकॉल्स की रिक्वायरमेंट होती है. Hmm. डू नॉट यूज ओल्ड प्रोटोकॉल्स, क्योंकि ये जो प्रोटोकॉल्स हैं ये कंसीडर किए जाते हैं आपके ओल्ड वर्जन में. ठीक है? सो डेफिनेटली वी डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज विद द सिक्योरिटी ऑफ VPN, है ना? हम नहीं चाहते हैं कि Yes. कोई भी अटैकर या हैकर हमारे इन प्रोटोकॉल्स में एंट्री कर सके या किसी भी तरीके का इशू हमारे नेटवर्क में आए जब हम VPN को इस्टेब्लिश कर रखे हैं. Microsoft always recommend us, please try to use the latest protocols that help us to establish our communication between two different public networks. So you can go with this way और या फिर IKE version 2 और OpenVPN को combine करके हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. Now clear about it? Yes, sir. What do you think about tunnel? It's connected to devices. I mean network. ठीक है, ये है VPN. ठीक है, sorry, this is our Azure portal. Let's take an example because VPN is applicable for local to local. हम यहाँ पे बात करने वाले हैं Azure to local. ठीक है, ये Azure portal है और ये हमारा ऑफिस है. दिस इज ऑन प्रोमाइसेस ऑफिस और कुछ बंदे जो हैं वो वर्क फ्रॉम होम करते हैं. एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु इज रिस्पांसिबल टू वर्क फ्रॉम होम. अब आपके जो रिसोर्सेज है ना, लाइक ये आपका सिक्वल सर्वर आपने स्टैब्लिश कर रखा है पोर्टल पे, आपने एक FTP सर्वर बना रखा है पोर्टल के ऊपर, यू स्टैब्लिश वन एप्लीकेशन सर्वर, ऐप सर्वर भी हमने पोर्टल पे स्टैब्लिश कर रखा है. I don't want to authorize, even no one want to share their resources with the help of public IP address or with the help of public network. अगर पब्लिक नेटवर्क से अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं तो इट मींस दैट इट मे बी क्रिएट अ प्रॉब्लम, क्योंकि अगर किसी को भी पब्लिक IP एड्रेस का मालूम पड़ गया या फिर क्रेडेंशियल पता चल गया तो एनीवन कैन एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर, राइट? Yes. So whenever we connect our entire services to an organization, this is our office, this is our branch of organization.
नंबर Okay. ऑफ एम्प्लॉयज हु रिस्पॉन्सिबल टू वर्क, बहुत सारे एम्प्लॉय यहाँ पे बैठ के काम करते हैं, राइट? मोर देन 500 एम्प्लॉयज रिस्पॉन्सिबल टू वर्क फ्रॉम द ऑफिस लोकेशन, or these devices are connected, the employees laptop and desktop and mobile phones are connected using office network. तो ऑफिस ने भी एक ISP सेलेक्ट कर रखा है ना, Yes. फायरवॉल भी अवेलेबल है, वी ऑलरेडी established firewall, and now we are going to connect all the network, all the office network to Azure VPN. अगर हम अपने पूरे ऑफिस नेटवर्क को Azure VPN के साथ कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं, तो which is considered as a site to site VPN. Okay. इसको हम क्या बोलेंगे? Site to Side site to side. VPN बोलेंगे. And same network if we are going to provide individual person, यहाँ पे हम individual person, क्योंकि ये बंदे घर से काम कर रहे हैं तो definitely they are Mm-hmm. using their personal broadband connection, इनका खुद का personal broadband connection है. तो this is considered as a site तो हो गया आपका Azure, और Yeah. ये क्या हो गए? पॉइंट कंसीडर किए जाएंगे, ये आपका Okay. साइट टू पॉइंट हो गया. Okay. साइट टू पॉइंट को कॉन्फ़िगर करना थोड़ा सा टफ है, क्योंकि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ द एंड. क्लाइंट को गाइड करने से कनेक्टिविटी तक की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारी रहती है, और अगर हम साइट टू साइट की बात करें तो वी आर रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म ओनली 60% टास्क, 40% टास्क always managed by the firewall team, always managed by the on premises team, जो नेटवर्क को हैंडल कर रही है किसी भी कंपनी, किसी भी ब्रांच के लिए. Okay. आर यू गुड विद दैट? Yes, sir. Great. So now we completed the part of protocols, and also we understand about the concept of site to site VPN and site to point VPN. So I think we are able to describe. If anyone asks questions, tell me about the gap between the protocols, or how many method we have to establish our VPN. So this is the exact details related to the protocol. अब अगला जो point है ना, which is really helpful, ये हर एक Azure इंजीनियर को आना चाहिए. About the method in the sense, आपने as an Azure administrator अपनी तरफ से सारा टास्क परफॉर्म कर दिया. You already established your VPN over Azure portal, but how we can distribute our VPN service with our employees and employees, right? तो एम्प्लॉय कभी घर से काम कर रहा है, कभी ऑफिस में जाके काम कर रहा है, मतलब कंपनी रिक्वेस्टेड मुझे दोनों तरीके का VPN सेटअप चाहिए. जो बंदे ऑफिस आएंगे उनको साइड टू साइड VPN से कनेक्टिविटी दो, और जो बंदे वर्क फ्रॉम होम करेंगे दे मस्ट नीड टू कनेक्ट विद द हेल्प ऑफ विच मेथड? साइड टू पॉइंट. वो थोड़ा सा टफ है, क्योंकि एंड टू एंड सपोर्ट आपकी जिम्मेदारी. कोई भी इशू आता है, यू आर रिस्पॉन्सिबल टू ट्रबल शूट, राइट? इसमें आपको नेटवर्क टीम हेल्प नहीं करेगी, क्योंकि जो कैंडिडेट कनेक्ट कर रखा है ना, वो अपने पर्सनल नेटवर्क से कनेक्ट कर रखा है, वो अपने वाईफाई कनेक्शन से कनेक्ट कर रखा है ना, तो इसमें ऑफिस की नेटवर्क टीम उसकी मदद नहीं करेगी. Is that clear? Yes, sir. Cool. Let's talk about method to set up or allow access of VPN. Access of VPN. ठीक है? जो Yes. VPN का एक्सेस है वो हम कैसे ऑथराइज करेंगे अपने यूजर्स को, वो थोड़ा सा देखते हैं. Mainly three method, 1 2 3, and you are honor, you are going to decide, but you have to justify, है ना? आप क्यों यूज कर रहे हो ये आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि इंटरव्यू के टाइम पे भी यही पूछते हैं कि इफ यू आर गोइंग टू प्रोसीड विद द मेथड सेकंड, टेल मी अबाउट द कोर फीचर्स ऑफ मेथड सेकंड. फर्स्ट इज सेल्फ साइंड सर्टिफिकेट. थोड़ा सा टफ है, बट बहुत अच्छी सिक्योरिटी इसमें मिल जाती है. Method 1 self signed certificate. Method 2 Microsoft Entra ID users authentication. This is also secure. ठीक है? आप जो एक्टिव डायरेक्टरी में यूजर क्रिएट कर रखे हैं, एजोर पोर्टल पे जो यूजर क्रिएट कर रखे हैं, या ऑन प्रेमाइसेस पे इससे यूजर को सिंक्रोनाइज कर रखे हैं, उनको भी आप ऑथराइज कर सकते हो फॉर द एक्सेसिंग योर सर्विसेज. एंड द थर्ड ऑप्शन इज Radius server. Have you idea about Radius server? I'm Old not है, sure, sir. बहुत पुराना है ये, मतलब हाँ, 2000. radius like we have just of any location
specific location we have used that server network. Introduced by सर्वर 2003। पहली बार जो रेडियस था उस सर्विस को सर्वर 2003 ने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। एंड इसमें कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है, मतलब इस मेथड के जरिए दैट रिक्वायर्ड अ मोर kind of steps required to set up our radius feature. Okay. So after setup of your express route VPN gateway, जैसे ही हमारा VPN gateway रेडी होता है, which is still in progress, 12 मिनट completed, मतलब 10 से 15 मिनट और लगेगा इसको रेडी होने में, ठीक है। So once our VPN gateway, virtual gateway is ready to use, फोर्थ स्टेप में हमारा क्या होगा, सिलेक्शन ऑफ प्रोटोकॉल्स। हम क्या करेंगे, प्रोटोकॉल का सिलेक्शन करेंगे कि yes, I decided to proceed with this one or ओपन VPN विद IP सिक्योरिटी, है ना। इन दोनों में से कोई सा भी हम ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे to establish our VPN. And then after that we are moving to the next point. You have to decide the type of method. You can go with this one, this one, this one, ठीक है। जो सबसे ज्यादा यूजर्स है ना, क्योंकि यू नो दैट हाइब्रिड इन्वायरमेंट लगभग हर एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करती है ऑन प्रोमाइसेस एडी का इस्तेमाल करके। दे नीड टू ब्रिंग देयर यूजर्स फ्रॉम ऑन प्रोमाइसेस एडी टू माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एडमिन सेंटर। लोकल एक्टिव डायरेक्टरी पे जो यूजर्स क्रिएट किए गए हैं उनको सिंक्रोनाइज करके पोर्टल पे ले जाते हैं, एंड देन दे आर गोइंग टू परफॉर्म देयर ऑन टास्क, है ना। वो अपने टास्क को मैनेज करने का काम करते हैं, परफॉर्म करने का काम करते हैं। इन दिस सिचुएशन तो सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो आपका 60% यूजर्स प्रेफर टू यूज माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी, अप टू 30% ऑर्गेनाइजेशन जो साइट टू साइट स्मॉल प्रोजेक्ट हैंडल करती है, 90 डेज प्रोजेक्ट, 180 डेज प्रोजेक्ट जिनका है, उसके बाद वो उन नेटवर्क को डिस्कनेक्ट कर देती है, उन डिवाइसेस को डिस्कनेक्ट कर देती है जैसे प्रोजेक्ट ओवर होता है। 10% कंपनी प्रेफर टू यूज रेडियस सर्वर जो बहुत ही सेंसिटिव डेटा को ट्रांसफर करने का काम करते हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया या कोई स्पेसिफिक बैंक हो गई जो मोस्टली फाइनेंस रिलेटेड टास्क परफॉर्म करती है, तो डेफिनेटली वो नहीं चाहते कि उनका जो डेटा या कन्वर्सेशन आउट हो या लीक हो, तो उस केस में रेडियस सर्वर का इस्तेमाल किया जाता है। Clear? Okay. So Yes, we will sir. talk about the methods, how we can manage and establish our virtual network Microsoft Intra ID users के थ्रू और सेल्फ साइन सर्टिफिकेट के जरिए। सेल्फ साइन सर्टिफिकेट के जरिए डेफिनेटली इट विल टेक टाइम, क्योंकि हमें हर एक बंदे का सेल्फ सर्टिफिकेट मंगाना पड़ेगा, उसको सेव करना पड़ेगा पोर्टल पे, एंड देन ही विल बी एबल टू एक्सेस द VPN connectivity. Now this is the concept. All done. Any question about the concept related to the Azure VPN setup? No sir, एक्चुअली ये भी टॉपिक्स ना मेरे लिए नए हैं, तो मुझे थोड़ा सा एक दो बार रिवाइज करूंगी तो। ठीक है, यू कैन स्टार्ट विद द वीनेट। वीनेट को समझो। वीनेट में हमने डिस्कस किया था कि वीनेट इज अ टाइप ऑफ आवर पर्सनल नेटवर्क। जैसे हम एक ऑफिस में, एक ऑर्गेनाइजेशन में स्विच परचेज करते हैं, स्विच हमें बहुत सारे लॉजिकल फिजिकल पोर्ट प्रोवाइड करता है, और उस पोर्ट्स में हम केबल, नेटवर्क केबल लगा करके we are able to provide connection to all the network devices, चाहे वो हमारा लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, प्रिंटर हो, सर्वर हो, मतलब जो भी मशीन्स हैं उन मशीन्स को हम नेटवर्क केबल के साथ कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं, राइट। सो अब वीनेट को उसी तरीके से कंसीडर करो, और जो वीपीएन है ना, सिमिलरली वीपीएन कैन आल्सो परफॉर्म द सेम टास्क। वीपीएन क्या है, दो डिफरेंट नेटवर्क के बीच में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने का काम करता है। आई एम गोइंग टू गाइड यू अबाउट द यूज केस ऑफ आवर VPN इन द रियल इन्वायरमेंट, जिससे आप रिकॉग्नाइज कर सको कि किस तरीके से ये इंफ्रास्ट्रक्चर में टास्क परफॉर्म करता है। Okay. अब अभी गुड फॉर सो फार? Yes sir. Okay, great. So now let's proceed for the next. How VPN can work in real environment, especially we are talking about the Azure. Number of machines we establish over Azure portal. This is our Azure portal, and यहाँ पे अपने पास ये इंडिविजुअल पर्सन है जो वर्क फ्रॉम होम परफॉर्म कर रहे हैं टास्क को,
or we are going to talk about the VNet, our organization as well. We establish one virtual network, और virtual network contains dedicated range of IP address जिसमें हमने 192.168.1.0/25 का इस्तेमाल किया है, ठीक है। हम्म, द सबनेट दैट वी स्टैब्लिश, और जो इसके अंदर वर्चुअल मशीन्स अवेलेबल होंगी या सर्विसेज हम क्रिएट करेंगे, इनको प्राइवेट आईपी एड्रेस तो यही मिल जाएगी 192 को 2 की, बट इनकी पब्लिक आईपी एड्रेस एक सेपरेट होगी। On premises machines, all the machines are connected with their own internet service provider, ठीक है। ये डिवाइसेस अपने पर्सनल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्टेड हैं, तो ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड विद डेडिकेटेड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, एंड हर एक बंदे की पब्लिक आईपी एड्रेस अलग है, ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, द आईपी एड्रेस ऑफ दिस मशीन 101 100 150 और 200, ये पब्लिक आईपी एड्रेस है। दिस इज द public IP address of that machine. All done. Yes, sir. Okay, now the IP address of our Azure portal is may be different, definitely 100% public IP address कभी भी मैच नहीं करती, तो maybe 183.10.100.150 ये IP एड्रेस हो गया। अब पब्लिक टू पब्लिक आईपी एड्रेस पॉसिबल नहीं है किसी भी डिवाइस में कम्युनिकेट कराने के लिए, राइट। We cannot, we are not authorized, we cannot make a connection between the machines with the help of public IP addresses. हम पब्लिक आईपी एड्रेस के थ्रू सिस्टम के बीच में कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू सेट अप टनल। Okay. एंड whatever tunnel that we are going to establish, right, जो भी हम टनल establish करेंगे ना, वो टनल होगा with the help of protocol. Okay. ओपन वीपीएन प्रोटोकॉल हो गया, IKE हो गया वीपीएन प्रोटोकॉल, ठीक है। ये हमारा टनल बनाएगा, मतलब ये इस्तेमाल तो करेंगे पब्लिक आईपी एड्रेस का, बट उस पब्लिक आईपी एड्रेस पे एक सेपरेट लेन क्रिएट कर देंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे डेटा ट्रैवल होंगे, बाकी के डेटा ट्रैवल नहीं होंगे, और ऑल द डेटा, ऑल द पैकेट्स आर इनक्रप्टेड। सारे डेटा, सारे पैकेट्स जो हैं वो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में ट्रांसफर होंगे, हम्म, है ना। सो नाउ कितनी आईपी एड्रेस हमने डिस्कस की अभी, दो दो। पब्लिक आईपी एड्रेस, दो प्राइवेट आईपी एड्रेस, हम्म, राइट। पब्लिक आईपी एड्रेस फॉर बोथ द मशीन्स, ऑन प्रोमाइसेस के लिए अलग पब्लिक आईपी एड्रेस, एज्योर के लिए सेपरेट पब्लिक आईपी एड्रेस, और ऑन प्रोमाइसेस के लिए प्राइवेट आईपी एड्रेस अलग, एज्योर रिसोर्सेज के लिए प्राइवेट आईपी एड्रेसेस अलग, ठीक है। नाउ इन दिस सिचुएशन, राइट, एक प्राइवेट आईपी एड्रेस हमें और मिलेगी विच इज नॉट एसोसिएटेड विद एनी अडेप्टर। जो बीपीएन हम क्रिएट करेंगे ना, बीपीएन के पास खुद का एक प्राइवेट आईपी एड्रेस आएगा। Okay. सो उसके लिए थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा, जैसे ही हमारा वीनेट रेडी होता है, गेटवे रेडी होता है, आई विल शो यू कि हाउ इट वर्क इन रियल मोमेंट। Okay. Still in progress, 20 minutes completed, but it's still showing in progress, right? And now what else? हम इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए, इस प्रैक्टिकल को कंप्लीट करने के लिए, वी विल यूज आवर ऑन प्रेमाइसेस वर्चुअल मशीन दैट वी एस्टैब्लिश ऑन VMware वर्कस्टेशन, ठीक है। VM पे हम एक वर्चुअल मशीन एस्टैब्लिश करेंगे, और इंटरनेट मस्ट बी एक्सेसिबल फॉर दैट मशीन, है ना, इंटरनेट उस पर एक्सेस होना चाहिए तभी VPN काम करेगा। एंड आफ्टर दैट we will connect our VPN to on-premises VM या on-premises Windows machine, Linux machine, Mac operating system, whatever types of devices that you are using on premises, ठीक है। जो भी devices हम on premises पे use कर रहे हैं, we will use, and also we will perform the task to make a connection. हम दोनों के बीच में communication establish करेंगे। Okay.
Is it fine, please? यस सर। ठीक अभी है, नो। मैं पूरा 100% तो समझ नहीं आ रहा, बट हाँ मैं ये अभी वीडियो देख के ना एक बार प्रैक्टिकल खुद से भी कर लूंगी, तो कोशिश करूंगी समझने का। If your concept is clear, if your concept is okay, then डेफिनेटली प्रैक्टिकल में उतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम हाँ। तब आती है प्रैक्टिकल में जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा कि हमारा रिजल्ट क्या आएगा, यस। प्रीरिक्विजिट्स क्या है, क्या क्या सर्विसेज हमें इन्वॉल्व करनी है, जिससे हमें एक डेडिकेटेड जो है व्हाट वी कैन से दैट कनेक्शन इस्टेब्लिश हो, है ना। यहाँ पे हम यस। चीजों को सेग्रीगेट करेंगे, वी जस्ट नीड टू डिवाइड द ऑल सर्विसेज, और उसके बाद सभी सर्विसेज को कंबाइन कर देंगे। ठीक है, स्टिल इन प्रोग्रेस। ठीक है, 22 मिनट कंप्लीटेड, हाफ एन आवर तो ले ही जाएगा ये कम से कम। ठीक है, सो नॉट एन इशू। हम आ जाते हैं पोर्टल के ऊपर। हम अपनी तरफ से सारी चीजें रेडी रखेंगे ताकि हम फटाफट से वीपीएन को कंप्लीट कर सकें एक वीडियो में। नहीं भी होगा तो आई विल कंबाइन द वीडियो, दो पार्ट में कंबाइन करके एडिट करके फिर शेयर करेंगे, क्योंकि विच इज कंफ्यूजिंग। तो आधा पार्ट इधर आधा पार्ट उधर, तो उसमें भी समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। ठीक है, हाँ। तो व्हाट यू नीड टू डू, दिस इज आवर वीनेट, है ना। कौन सा वीनेट है? वीपीएन वीनेट के नाम से हमें VPN तैयार भी किया। नहीं। वीपीएन वीनेट कंटेन्स 2 सबनेट्स, एंड हमने अपने नेटवर्किंग के केस में, नेटवर्किंग की क्लासेस में डिस्कस की थी कि सबनेट्स कितने भी हों, अगर आपके सबनेट्स एक ही वीपीएन से वीनेट से जुड़े हैं तो वो सारी मशीनें आपस में कम्युनिकेट करेंगे। आई थिंक ये हमने डिस्कस किया था, रिमेंबर। यस। तो जो वीएम सबनेट है, यहाँ पे हम कुछ वीएम बनाएंगे, और जो गेटवे में बीपीएन बनाएंगे, दोनों आपस में कम्युनिकेट करेंगे। तो यू कैन से दैट योर गेटवे कैन वर्क एज ए मीडिएटर। किसके किसके बीच में मीडिएटर की तरीके से काम करेगा? ऑन प्रोमाइसिस के फिजिकल लैपटॉप या डेस्कटॉप के नेटवर्क के बीच में, और एज्योर के बीनेट में जो वर्चुअल मशीन क्रिएट करी है उनके बीच में। ये एज ए मीडियम काम करेगा, एज ए मीडिएटर काम करेगा, जिससे हम आसानी से चीजों को क्या कर पाएंगे, कम्युनिकेट कर पाएंगे एंड एस्टैब्लिश कर पाएंगे अपने रियल एनवायरनमेंट में। ओके। अभी गुड। यस। मशीन्स, दिस इज माय ऑन प्रेमाइसेस लैपटॉप भी हो सकता है, डेस्कटॉप भी हो सकता है, या अदर कोई मोबाइल फोन भी हम कनेक्टिविटी कर सकते हैं। ऑल डिवाइसेस आर अवेलेबल ऑन प्रेमाइसेस। ठीक है, नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन्स एंड सर्विसेज भी एस्टैब्लिश ओवर एजू पोर्टल एज वेल। यहाँ पे हमने वीएम क्रिएट कर रखा है, या डेटाबेस कॉन्फ़िगर कर रखा है, या फिर हमने कोई सर्वर को एस्टैब्लिश कर रखा है। एंड दीज मशीन्स आर कनेक्टेड टू डेडिकेटेड वीनेट। ये मशीन हमारी किससे कनेक्टेड है? डेडिकेटेड वर्चुअल नेटवर्क से। And under the virtual network, we already established these machines in kind of subnet, right? क्योंकि VNet कभी भी VM को कंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, सबनेट इज रिस्पॉन्सिबल टू कंटेन द वर्चुअल मशीन्स आर द सर्विसेज। अब दो सबनेट थे इसमें। सबनेट 1 इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द VM, ये हमारा सबनेट हो गया फॉर वर्चुअल मशीन। और दूसरा सबनेट यहाँ पे है जो हमारा गेटवे कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, द सेकेंड सबनेट इज रिलेटेड टू द गेटवे। इन गेटवे वी सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर VPN। हमने क्या किया यहाँ पे? VPN को इस्टेब्लिश किया, एंड यूजिंग VPN वी आर गोइंग टू कनेक्ट आवर ऑन प्रेमाइसेस रिसोर्सेज। VPN की हेल्प से हम नॉन प्रोमाइसेस मशीन्स को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे। सो लेट मी गिव यू अनदर लाइक हाउ यू कैन रिकॉग्नाइज दैट योर VPN इज वर्किंग प्रॉपर्ली और नॉट। लेट्स टेक एन एग्जांपल। जो आईपी एड्रेस हमारे सिस्टम की है मे बी 192.168.1.4 है। ऑन प्रोमाइसेस पे जो सिस्टम है 192.168.71.10। अगर हम इन दोनों मशीन्स को प्राइवेट आईपी एड्रेस के जरिए, राइट, if we are able to make a communication with the help of private IP address, it means that your VPN is working properly. Your machines are able to transfer and communicate to each other with the help of a dedicated tunnel that you established over a Azure portal. तो हमने लगभग सारी चीजें यहाँ पे कंप्लीट कर ली हैं। एंड नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, आई एम गोइंग टू क्रिएट वन वर्चुअल मशीन। वर्चुअल मशीन शुड बी अवेलेबल इन द सबनेट ऑफ VM जो हमने कल बनाया था। VM सबनेट के अंदर इसको कॉन्फ़िगर करना है।
Select your resource group and provide the virtual machine name. I don't want to set up availability zone or availability set. Windows Server 2019 will be the virtual machines operating system. यहाँ पे हम यूजर नेम एंड पासवर्ड प्रोवाइड करने वाले हैं. We just need to provide username and password to take the RDP of our VM. ठीक है. This is I don't need to add more than one port. So that's why we allow only the port number 33810 to get an access of RDP. Select VPN VNet और VPN VNet के अंदर दो सबनेट हमने बनाए थे. एक VM सबनेट था और दूसरा gateway subnet. So I want to proceed with VM subnet 3389 next review and create. Now, our virtual machine is in progress, or meanwhile, I have already set up one lab on on-premises. This is my Windows 11 machine. Okay, this is our on-premises machine that we established, and now it's time to set up a connection with the help of VPN. Virtual machine is also ready to use. I'm going to take the RDP with the help of public IP address or check the private IP address that we are getting from Azure. Hello, can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये अपने पास वर्चुअल मशीन है जो हमने एजू पोर्टल पे सेटअप किया है और दैट इज कनेक्टेड विद द वीएम सबनेट, क्योंकि वीपीएन वीनेट के अंदर दो सबनेट बनाए थे, एक वर्चुअल मशीन्स और रिसोर्सेज के लिए और दूसरा हमने कॉन्फ़िगर किया था फॉर द डेडिकेटेड पर्पज कि हम इसमें वीपीएन सेटअप करेंगे और वीपीएन के थ्रू वी आर गोइंग टू मेक अ कम्युनिकेशन. ठीक है, सो आई वांट टू चेक द प्राइवेट आईपी एड्रेस दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम द वीपीएन gateway, the gateway that we established VM gateway के थ्रू. और लोकल में ये अपना विंडोज 10 कंप्यूटर है और इसकी जो आईपी एड्रेस है IP config, यहाँ पे जो हमें आईपी एड्रेस मिल रही है विच इज 192.168.1.10.
अब हमें दोनों के बीच में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करना है, बट विद द हेल्प ऑफ टनल, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इनके बीच में कनेक्शन नहीं होगा. वी आर नॉट एबल टू टेक द आरडीपी ऑफ आवर वर्चुअल मशीन विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट आईपी एड्रेस. लेकिन जब हम वीपीएन को सेटअप कर लेंगे, व्हेनेवर वी रेडी विद द वीपीएन सेटअप, we are easily able to access the RDP with the help of same private IP address that we are getting on this machine. ठीक है. IP हम्म, config हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं, and the IP address that we are getting 192.168.1.4. अगर हम ऑन प्रोमाइसेस पे आते हैं, विंडो प्लस आर MSTSC टाइप करते हैं और 192.168.1.4, लेट्स ट्राई टू कनेक्ट. और अगर हम यहाँ पे पिंग भी करते हैं, पिंग स्पेस 192.168.1.4 माइनस टी, वी आर नॉट एबल टू मेक कम्युनिकेशन. एक बार हम फायरवॉल भी बंद करके देख लेते हैं. फायरवॉल डॉट cpl. Let me turn off the firewall to check the communication. Unfortunately, destination host unreachable. ठीक है, ये हमारा हम्म, कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा है. अब ओके, VPN का कॉन्सेप्ट आता है और VPN के थ्रू हम इनको कम्युनिकेट करने वाले हैं. We already established virtual gateway. Under the virtual gateway, please click on VPN gateway. और ये हमारा VPN गेटवे है. हमने जो ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड किया था, द ऑथेंटिकेशन दैट वी प्रोवाइडेड विद द हेल्प ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज, राइट. हमने एडी के थ्रू यस, इसको सेटअप किया था. एवरीथिंग इज ओके. 30 मिनट लगे थे इसको कंप्लीट होने में, जो हमने माइक्रोसॉफ्ट इंटरकनेक्ट का ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड किया था. एंड नाउ वी आर एबल टू सी डाउनलोड वीपीएन क्लाइंट. ये वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है जिस कॉन्फ़िगरेशन फाइल को हम शेयर कर देंगे किसी भी यूजर के साथ वर्ल्ड वाइड. कहीं पे भी बंदा है, इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर, इस सॉफ्टवेयर को ओपन करेगा. ओपन करने के बाद एक टूल के साथ कनेक्ट करेगा, एंड टूल से कनेक्ट करने के बाद इट विल रीडायरेक्ट टू द पेज ऑफ यूजर आईडी एंड पासवर्ड, और वहां पे फिर हम उसके लिए एक नया यूजर आईडी पासवर्ड कॉन्फ़िगर करके प्रोवाइड करेंगे. ओके, क्लियर. अब यस, लेट्स टेक एन एग्जांपल. ये बंदा कहीं से काम कर रहा है, लाइक रिमोट पे काम कर रहा है. यू आर एन एज्योर इंजीनियर, और आपने वीपीएन का सेटअप बना के दे दिया. अगर हमारी वर्चुअल मशीन का एक्सेस चाहिए या सर्वर का एक्सेस चाहिए या फिर द डेटाबेस दैट आई एस्टैब्लिश, यू मस्ट नीड टू कनेक्ट विद वीपीएन फर्स्ट. सो ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल हमने शेयर कर दी, एंड आस्क देम टू डाउनलोड one tool. The tool name is Azure VPN Client. ठीक है. हम Azure VPN Client डाउनलोड करेंगे for them, that we can make a connection with on premises to Azure portal. This is the VPN client, Azure VPN client. लोगो हमें याद रखना है कि ये लोगो है इसका. Always try to download from the Microsoft Store, राइट. क्योंकि यू नो दैट जो भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं उसमें माइक्रोसॉफ्ट स्टोर अवेलेबल है. अगर आपके पास ओके, मैक है, अगर आपके पास लिनक्स है, तो फॉर्मेट ऑफ दिस पर्टिकुलर टूल विल बी डिफरेंट डेफिनेटली, क्योंकि उनका फॉर्मेट आपस में मैच नहीं करता. तो ये अलग हो सकता है. फॉर्मेट ऑफ अवर ऑन प्रोमाइस, फॉर्मेट ऑफ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट वी आर करंटली यूजिंग. ट्राइंग टू इंस्टॉल. लेट्स वेट फॉर फ्यू मोर मिनट. कॉन्फ़िगरेशन फाइल अपने पास है, एप्लीकेशन हमने इंस्टॉल कर लिया. अब इसके लिए एक यूजर क्रिएट करना है इंट्रा आईडी के जरिए, इंट्रा एडमिन सेंटर के थ्रू. वी आर गोइंग टू स्टैब्लिश वन डेडिकेटेड यूजर, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस यूजर आईडी एंड पासवर्ड वी आर गोइंग टू मेक अ कम्युनिकेशन. ठीक है. यहाँ पे हम एक यूजर बना लेते हैं, मे बी विद नेम ऑफ क्लार्क. डिस्प्ले नेम इज ऑल्सो क्लार्क. आई वॉन्ट टू कॉन्फ़िगर माई ऑन पासवर्ड. यहाँ पे हम पासवर्ड कॉन्फ़िगर कर देते हैं, and next. I don't want to make it member of any specific group or any specific rights. This Clark user, okay, sorry, I used same username. Do one thing, let me reset the password of our existing user. Clark का हम password reset कर लेते हैं because I forgot the password of this user.
portal.azure.com and clark@tmcloud.in. This user we will use to access the VPN communication. हम VPN को access करने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे. All done. Yes, sir. Back to on premises. This is your VPN client. हमारा VPN client look like this. अभी ये किसी से connected नहीं है. जो आपने फाइल फॉर्मेट डाउनलोड किया है which is like a zip format. I'm just going to extract it, right click और इसको extract all कर देते हैं. Where you want to put it? I want to put on desktop पे ही रख देते हैं. ठीक है. सो डेस्कटॉप पे ये हमें कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगा. आई एम जस्ट गोइंग टू कॉपी, जस्ट नीड टू ओपन. दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन फाइल इन द फॉर्मेट ऑफ XML. इसका जो फॉर्मेट है वो XML के केस में है. ये आपका एक्चुअल फोल्डर है, ये जिप फॉर्मेट है. प्लस आइकन पे क्लिक करो, रूट पे जाओ, VPN क्लाइंट पे जाओ, VPN Azure VPN पे जाओ एंड वी जस्ट नीड टू सेलेक्ट इट. No need to provide any specific information because this is the collection of everything. You have Okay. to save it. अभी ये आपका disconnect दिखा रहा है. I'm just going to click connect. You have to provide communication with the help of user. तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही एक user create किया, remember? So I'm Yes. just going to use the same user ID and password clark@tmcloud.in. और पासवर्ड हमने इसका रीसेट कर दिया है. आई एम जस्ट गोइंग टू यूज पासवर्ड एंड लेट्स वेट. मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर है. आई थिंक वी कनेक्टेड, राइट? Yes, sir. Can we check the communication again with the virtual machine that we established, CMD, and the IP address of our cloud VM is 192.168.1.4 minus T, right? Are we able to reply? And Yes. second part, wanted to add one more point. RDP access करके देखते हैं. MSTSC, the best way to verify that your VPN is working properly or not. 1.4 पे गए, हमने कनेक्टिविटी प्रोवाइड की. यूजर आईडी पासवर्ड आ रहा है. यूजर हमने दिया था वेब और पासवर्ड हमने दिया था cloud@12345 6. I want to take the RDP. Yes, we are able to access it. So this is end-to-end practical related to the VPN setup.